آج کی ہماری مرکزی آیت ہے خروج کی کتاب، اس کا 34 نمبر چیپٹر اور اس کی 6 آیت ہم تلاوت کریں گے۔ اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قحط کرنے میں دھیما اور شفقت اور غنی، وفا میں غنی۔ آمین۔ آج کا کلام ہم خدا کے خادم جناب چیئرمین پاسٹر حروم صاحب کے وسیلہ سے سنیں گے۔ خدا کے کلام کو اور خدا کے خادم کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھ کے بیٹھنا ہے۔ جناب چیئرمین پاسٹر حروم صاحب۔ بہت شکریہ تشریف رکھیں۔ رب کائنات یہوہ آسمانی باپ اور اس کے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی عظیم بابرکت خوبصورت جلالِ رحمت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھا ہے اور پھر ہمیں برگزیدہ کیا کہ ہم اس کی بارگاہوں میں آ کر اس کی بندگی اور اس کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا کریں۔ خدا کی شکر گزاری ہے۔ میرے عزیزو، ہم پچھلے کچھ سنڈے سے ایک سبق سیکھ رہے ہیں۔ پچھلے سنڈے بھی ہم نے سیکھا، آپ میں سے کسی کو یاد ہو؟ یاد رکھنا بھی چاہیے جی، چرچ میں یہ بتائیں۔ بالکل، خدا ایک ہے۔ اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے تھے کہ دنیا میں بتیرے خدا اور بتیرے خداوند ہیں۔ اور پچھلے سنڈے ہمارا یہ مضمون تھا عبرانیوں کے خط میں سے کہ خدا بیٹے کی بابت کہتا ہے، خدا تیرا خط عبدالآباد ہے۔ ہم نے سیکھا تھا کہ زبور 45 کا جو یہ حوالہ خدا کا بندہ عبرانیوں کا مصنف کوٹ کرتا ہے، وہاں پر کیا ہے؟ الوہیم۔ کیا ہے؟ الوہیم۔ الوہیم جو ہے اس کا اگر ہم اردو میں آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کا ورڈ یوز کریں تو وہ ہے خداوند۔ کیا ہے؟ خداوند۔ کیونکہ خداوند جو ہے نئے اردو ترجمے میں فرشتہ کے لیے، بھائی کے لیے، بادشاہ کے لیے اور شوہر کے لیے ہمیں ملتا ہے، نبی کے لیے، بادشاہ کے لیے ہمیں ملتا ہے۔ اور اصل متن میں ان تمام اشخاص کو الوہیم کہا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم آج اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے سیکھیں گے کلام مقدس میں سے۔ ہم نے زبور 82 کا حوالہ کوٹ کیا تھا کہ اس کی 6 آیت میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ ہم نے یہ حوالہ بھی پڑھا تھا، خدا کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو، تم یعنی خدا ہو، تم کیا ہو؟ تم الہ ہو، اور حق تعالیٰ کے پھر ساتھ کیا کہا ہے؟ فرزند ہو، حق تعالیٰ کے یعنی خدا کے بیٹے ہو۔ اور پھر ہم نے یسوع مسیح کا بھی حوالہ کوٹ کیا، یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کہتے ہیں 10ویں باب کی 34ویں 35ویں آیت میں یسوع نے ہمیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ اور آگے اگر ہم پڑھیں تو لکھا آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر رکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یسوع مسیح نے یہ جو زبور کا حوالہ کوٹ کیا ہے، وہاں پر کیا لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ تم الہ ہو، تم الہ ہو اور حق تعالیٰ کے فرزند ہو، یعنی خدا کے بیٹے ہو۔ اور اسی حوالہ کو یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں بیان کرواتے ہیں، کہتے ہیں کیا تمہاری شریعت میں نہیں لکھا میں نے کہا تم خدا ہو، میں نے کہا تم خدا ہو۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں جن کے پاس خدا کا کلام آیا، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا۔ اور یسوع مسیح
में से कि तुम मुझे कहते हो कि मैं कुफर बकता हूँ, हालांकि बाप ने मुझे मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कुफर बकता है इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, तुम इसलिए मुझे कहते हो कि कुफर बकता है, मैं कहता हूँ कि मैं खुदा का बेटा हूँ। हालांकि ज़बूर में खुदा पहले से फरमाता है, यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारी शरीयत में लिखा हुआ है कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो और हक ताला के फरजंद यानी खुदा के बेटे हो। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे क्यों ये कहा गया कि तुम खुदा हो, क्यों ये कहा गया कि जिनके पास खुदा का कलाम आया वो खुदा है। आज हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीजों, हम जब देखते हैं खुदा ने हर जानदार को को इंसान को तख्लीक किया, मगर इन तमाम मखलूकात में से इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया है। इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया है। जो अकल, जो अख्तियार खुदा ने इंसान को दिया है वो किसी भी जानवर के पास नहीं है और किसी जानदार के पास नहीं है। इस बात को याद रखना है कि खुदा ने हमें क्या बनाया है, अशरफ अल मखलूकात बनाया है। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया। खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया। किसी और जानदार को ये शरफ हासिल नहीं है जो इंसान को हासिल है। मैंने कहा कि तुम अल्लाह हो, मैंने कहा तुम अल्लाह हो, तुम खुदा हो। मैं बता रहा था खुदा कोई नाम नहीं है, खुदा कोई नाम नहीं है, बल्कि जिस तरह खुदा ने लक़ब है उसी तरह खुदा भी लक़ब है। और लक़ब खुदा के नबी मानी जो हैं वो जो एलोहीम के नबी मानी है उसका मतलब है आपका मालिक, अख्तियार रखने वाला, जज, अदालत करने वाला। मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान को अख्तियार दिया है, अक्ल और शऊर दिया है, इंसान को इतना नवाजा है कि वो बाख्तियार है, उसके हाथ में है कि वो जिंदगी को चूज करे या मौत को चूज करे। ये उसके अख्तियार में है। जिंदगी और मौत जो है इंसान के अख्तियार में है कि वो किसको चुनता है। और फिर मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए हम मजीद इसको सीखने के लिए खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा, जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा। यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा है अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको ज़ाहिर किया, उसी ने उसको ज़ाहिर किया। खुदा की जो सिफात है वो हमें यीशु मसीह में नजर आती है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जो मुझे देखता है, यूहन्ना की इंजील 12:35 में मेरे साथ तो यीशु मसीह क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग इस आयत को लेकर यीशु मसीह को खुदा समझते हैं, मगर यूहन्ना की इंजील 12:35 में यीशु मसीह इस बात की तशरीह कर देते हैं, कहते हैं जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। जो मुझे देखता है वो किसको देखता है? मेरे भेजने वाले को देखता है। कैसे देखता है? उन सिफात के वसीला से जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप
चाहता है। जिस लेवल पर यीशु मसीह आया, हमें भी खुदा उस लेवल पर देखना चाहता है। और यीशु मसीह ने भी कहा, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है, तुम भी वैसे कामल बनो। जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है, वैसे तुम भी कामल बनो। इसका हरकत मतलब नहीं है कि हमने खुदा के बराबर अपने आप को खुदा बना लेना। इसका हरकत मतलब ये नहीं है, बल्कि हमने इसके सियाको स्वभाव को समझना है, इसके मायने को समझना है। और मेरे शिष्यों, हमने ये समझना है कि खुदा चाहता है कि उसकी स्वभाव जो है वो हम में से नजर आए, वो हम में से नजर आए, जिस तरह से यीशु मसीह में से नजर आए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा यीशु मसीह का था। आए मेरे साथ मरकजी हवाला जो है उसको दोबारा से पढ़ते हैं। ये खुदा की सफात है। ज़बूर 34 बाब की 6 आयत में से हमने, बेशक खुदा की सिफात जो है अनगिनत है। खुदा की सिफात जो है वो क्या है? अनगिनत है। मगर हम मसीह सिफात के बारे में भी सीखेंगे, मगर आज हम खुदा की सिर्फ और सिर्फ 2 सिफात को देखेंगे। कितनी सिफात को? 2 सिफात को जो खुदा हमारे अंदर देखना चाहता है। और यीशु मसीह ने भी इसकी मनाही की है कि ये 2 सिफात आपके अंदर होनी चाहिए। जब ये सिफात हमारे अंदर आ जाएगी, फिर हम उस लेवल पर आना शुरू हो जाएंगे जिस लेवल पर हमें खुदा देखना चाहता है। जी पढ़िएगा मरकजी हवाला जो हमने पढ़ा है। और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाई रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में धनी। आमीन। देखिए इस आयत में भी काफी सिफात है। मिसाल के तौर पर खुदावन खुदाई रहीम, खुदा क्या है? रहीम है। और फिर मेहरबान है। फिर क्या है? मेहरबान। और तीसरे नंबर पर कहर करने में धीमा, कहर करने में धीमा। चौथे नंबर पर क्या है? शफकत। और फिर 5वें नंबर पर वफा में गनी है। वफा में क्या है? गनी है। आज हम 2 सिफात को देखेंगे, खुदाए रहीम और मेहरबान। खुदाए रहीम और मेहरबान, ये 2 सिफात जो है खुदा की सिफात है। किसकी सिफात है? खुदा की सिफात है। और अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो यीशु मसीह में भी ये सिफात हमें खुदा की नजर आती है। यीशु मसीह के पास जो भी आया, जिसने भी कहा ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो यीशु मसीह ने उस पर रहम किया। यीशु मसीह ने उस पर क्या किया? रहम किया। और जिसने भी चाहा कि यीशु मसीह उस पर मेहरबान हो, यीशु मसीह उस पर मेहरबान हुए। मेरे दोस्तों, कलाम खुदा पर जब हम गौर करते हैं तो यूब 33 बाब की 26 आयत में लिखा है, वो खुदा से दुआ करता है और वो उस पर मेहरबान होता है। जो खुदा से दुआ करता है, खुदा उस पर क्या होता है? मेहरबान होता है। और फिर ज़बूर 34 आयत में लिखा है, खुदावंद कैसा मेहरबान है। आसमान आप देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। और फिर दूसरा शमूएल 22 बाब की 26 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो लिखा है, रहम दिल के साथ तू रहीम होगा, रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल। ये
یقیناً خدا جو ہے جو رحم دل ہے، جس کے اندر یہ خدا کی صفت پائی جاتی ہے کہ انسان جو رحم دل ہے اس کے ساتھ خدا بھی رحم دلی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ خدا بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ رحیم ہوتا ہے۔ خدا بھی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رحیم ہوتا ہے۔ اور زبور 18 کی 25 سے آیت میں لکھا ہے رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل۔ زبور 38 میں آیت میں لکھا ہے لیکن وہ رحیم ہوگا بدکاری کو معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا۔ یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہماری بدکاری کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بڑی دفعہ وہ اپنے قہر کو، اپنے شدید غصے کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا۔ اگر وہ اپنے قہر کو نہ روکے، پورے غضب کو بھڑکنے دے، تو کیا کوئی اس کے حضور زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی خدا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، پھر زبور 66 میں 103 میں بھی لکھا ہے اللہ کا بندہ کہتا ہے یا رب رحیم و کریم خدا، یہ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے۔ یہ خدا کی صفات ہے اور لکھا ہے زبور 145 میں اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خدا اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ اور پھر دانیال کی کتاب میں بھی لکھا ہے خداوند ہمارا رحیم و غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی پھر بھی ہمارے ساتھ کیسے پیش آیا؟ رحیم و کریم، بھلائی کے ساتھ۔ اور میرے عزیزو، ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ اس سے واپس آنے آتے رب الفواج فرماتا ہے اس روز وہ میرے لوگ میری خاص ملکیت ہوں گے، میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اس وقت وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر کیا ہوتا ہے؟ رحیم ہوتا ہے۔ جسمانی باپ جو ہے، جو بیٹا اس کی خدمت کرتا ہے، جو اس کا خدمت گزار ہوتا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے؟ رحیم ہوتا ہے۔ خدا کیسا ہے؟ میں بھی اسی طرح ان پر کیا ہوں گا؟ رحیم ہوں گا۔ یسوع مسیح لوکا 6 باب کی 36 آیت میں منادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسا تمہارا باپ رحیم ہے، جیسا تمہارا باپ کیا ہے؟ رحیم ہے، تم بھی رحم دل ہو۔ تم بھی کیا ہو؟ رحم دل ہو۔ جیسے میں پہلے بتا رہا تھا یہ خدا کی صفت ہے جو ہمیں یسوع مسیح میں بھی نظر آتی ہے، اس لیے یسوع مسیح کہتے ہیں جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ اور یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں سے، اس بڑے بھیڑ سے جو اس وقت یسوع مسیح کے پاس تھی، اس کا کلام سن رہے تھی، اس سے بیان کرتے ہیں جیسا تمہارا باپ رحیم ہے، جیسا تمہارا باپ کیا ہے؟ رحیم ہے، تم بھی رحم دل ہو، تم بھی رحم دل ہو۔ اور محسوس ہو پھر ہم پہاڑی بات میں بھی دیکھتے ہیں یسوع مسیح مدرسوں کے جنہی بیان 5 باب کی 7 آیت میں کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، مبارک وہ انسان ہے جو کیا ہے؟ رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، ان پر رحم کیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں مبارک بھی خدا کی صفت ہے۔ مبارک بھی کیا کس کی صفت ہے؟ خدا کی صفت ہے۔ مگر جس انسان میں یہ صفت نظر آتی ہے رحم دلی کی،
यीशु मसीह उसको भी मुबारक कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उसको भी क्या कहते हैं? मुबारक कहते हैं। मुबारक है वो जो रहमदिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। और मेरे शिष्यों, मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल का इंजील बयान। हम देखते हैं जो खुदा की सफात यीशु मसीह पहले बयान करते हैं, फिर कहते हैं जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है तुम भी कामल हो। पांचवें बार कि अगर हम 43वें आयत से पढ़ना शुरू करें तो लिखा है तुम सुन चुके हो कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखकर और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदो और नेको दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नाराज को दोनों पर भी बरसाता है। हमने ज़बूर में क्या पढ़ा? तुम अदा हो और हक ताला के क्या हो? बरसात हो, हक ताला के बेटे हो। और फिर यूहन्ना की इंजील में भी हमने पढ़ा, यीशु मसीह कहते हैं जिनके पास खुदा का कलाम आया वो खुदा है, ये तुम्हारी शरीयत में लिखा हुआ है। और मैं तो उसी आयत को कोट करते हुए अपने आप को खुदा का बेटा कहता हूँ, तुम कहते हो पुत्रवक्ता है। और यहाँ पर भी यीशु मसीह उसी हवाले के तहत ये कहते हैं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। मोहब्बत किसकी सिद्ध है? खुदा की सिद्ध है। खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। ये खुदा की सिद्ध है। अगर ये हमारे अंदर आ जाए, अगर हम दूसरों से मोहब्बत रखें, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, तो फिर हम बाप के जो आसमान पर है, कहां पर है? आसमान पर है। यीशु मसीह वक्त ज़मीन पर था। यीशु मसीह ने अपने बेटे और बेटियां नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? अपने बाप के जो कहां पर है? आसमान पर। उसके बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है। यीशु मसीह यहाँ पर मिसाल देते हैं खुदा की मोहब्बत की, खुदा की मेहरबानी की, खुदा की रहमदिली की। खुदा इस कदर इंसान से मोहब्बत करता है, खुदा इस कदर इंसान के साथ रहीम है, इस कदर इंसान पर मेहरबान है कि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नाराज को दोनों पर घी को बरसाता है। दोनों पर अपने घी को बरसाता है। आगे कहता है यीशु मसीह, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या है? अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या है? लिखा है कि हम सूद लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। उस शब्द सूद लेने वाले को बहुत बुरा समझा जाता, इसलिए यीशु मसीह उसकी मिसाल देते हैं कि वसूल लेने वाले भी ऐसा ही करते हैं। अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कामों के लोग भी ऐसा नहीं करते? यीशु मसीह कहते हैं बस चाहिए कि तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मेरे अजीजों, ये खुदा की सफात है, ये खुदा की सिफतें हैं जो खुदा हमें देखना चाहता है, जो यीशु मसीह भी चाहता है कि हमारे अंदर ये सिफतें पाई जाएं। तब हम अल्लाह होंगे, तब हम एलोहीम होंगे, तब हम खुदा के बरसात होंगे, तब हम खुदा के बेटे और बेटियां बनेंगे। वरना कहने को हम सब ही खुदा को अपना बाप कहते हैं, सब ही हम यीशु मसीह को अपना खुदावंद कहते हैं, मगर यीशु मसीह कहते हैं
जितने मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो। और मलाकी नबी के सहीफे में खुदा भी क्या करता है, कहता है कि बैल अपने मालिक की चमड़ी को, ठीक है, और गधा भी अपने मालिक की खुरने को पहचानता है। तो मुझे बाप कहते हो मगर तुम मुझे जानते नहीं हो, तो मुझे पहचानते नहीं हो। पहले नंबर पर हमने खुदा को जानना है, खुदा की सिफात को जानना है, फिर उन सिफात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। फिर हम अल्लाह होंगे, फिर हम खुदा के पसंद होंगे, फिर हम खुदा के बेटे होंगे, फिर हम खुदा की बेटियां होंगे। जैसी तो खुदा की सिफात जो है वो हम पे नजर आनी चाहिए। रोमियो के खाते में लिखा है, बाद में वाक्य में अगर कोई नासे है तो नसीहत भी, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। अगर कोई ये समझता है कि मेरे अंदर खुदा की ये सिफत पाई जाती है, मैं दूसरों पर रहम करता हूं, तो फिर कैसे रहम करे? खुशी के साथ। कैसे रहम करे? खुशी के साथ, परेशान होकर नहीं, अफसोसगी से नहीं, बल्कि कैसे? उसमें इब्रानियों के दूसरे बात की 17वीं आयत को देखेंगे, लिखा है, बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम होगा, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते, गौर कीजिएगा, उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती है, उन बातों में जो खुदा से क्या रखती है? इलाका रखती है, एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। दयानतदार सरदार काहिन बने। यहाँ पर खुदा का बंदा इब्रानियों का मुसन्नफ यीशु मसीह के बारे में बताता है, उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती है, उन बातों में जो क्या करती हैं? खुदा से इलाका रखती हैं, एक रहम दिल और दयानतदार सरदार कहने। ऐसे जो रहम दिली खुदा से इलाका रखती है, किससे इलाका रखती है? खुदा से। और यीशु मसीह में रहम दिली पाई जाती है, इसीलिए यीशु मसीह के पास जो भी रहम की तरह से आया, यीशु मसीह ने खुशी के साथ उस पर रहम किया। कैसे रहम किया? खुशी के साथ। कोई भी ऐसा शख्स हमें नजर नहीं आता जिस पर यीशु मसीह ने रहम ना किया। एक ऐसी कनानी औरत हमें नजर आती है जिसको यीशु मसीह ने ये कहा कि ये रवा नहीं, इनकी रोटी कुत्तों के आगे डाली जाए, पुत्रानी किनारी पुत्रानी रोटी जेड़ी है उन्होंने देने की बजाय किना आगे पा दी जाए, कुत्ते आगे पा दी जाए। अगर उस औरत का ऐसा जवाब था, यीशु ने कहा, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। उससे कहा, जा तेरे ईमान ने अच्छा किया, जो तू चाहती है मेरे लिए वैसा ही हो जाए। सिर्फ और सिर्फ एक हमें हवाला नजर आता है, और उसको भी कहा कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया, और उस पर भी क्या कर दिया? रहम कर दिया। मगर यीशु मसीह इसमें भी लॉजिक था। यीशु मसीह रहम करने से उसको मना नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों पर ये जाहिर करना चाहता था कि ये बेशक गैर कौम से है, मगर इसका ईमान देखें कितना बड़ा ईमान है।
किस नंबर पर नजर आती है हमें? पहले नंबर पर नजर आती है। अगर हमने शरीयत का हवाला जब पढ़ा है वहां पे सिफात शुरू होती है तो पहले नंबर पर हमें नजर आती है। और यीशु मसीह भी अगर खुदा की सिफात का मत्ती के इंजील में ये जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें जो है नजर आती है। और फिर इस भाग पर यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि जिस तरह तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी दूसरों के साथ रहमदिली से पेश आओ, रहम करो। और याकूब रसूल के खत में लिखा है दूसरे बाब की 13वीं आयत में, जिसने रहम नहीं किया, जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के हो। जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ कैसे होगा? बगैर रहम के। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। रहम इंसाफ पर क्या होता है? गालिब आता है। क्योंकि इंसाफ का ये तकाजा है जो इसका जुर्म है उसको उसकी सजा दी जाए, मगर रहम उसका क्या आ जाता है? गालिब आ जाता है। रहम कहता है कि इसको माफ कर दिया जाए। रहम कहता है इसको माफ कर दिया जाए। मेरे चीजों, खुदा की इन दो सिफात को अगर हम सीखना चाहें तो ये बहुत बड़ा मजमून है, मगर वक्त पे ज़ाकत उस समय जो है यहाँ पर इस वक्त रोक कर। और एक दो हवाले जो है जल्दी से पढ़ दूंगा आपके लिए। लूका के इंजील 6 बाब की 35वीं आयत में लिखा है, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो, तुम्हारा अजर बड़ा होगा, तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर मेहरबान है। और फिर पहले ग्रंथियों 13 बाब की 4थी आयत में लिखा है, मोहब्बत सबर है और मेहरबान। इससे 4 बाब की 35वीं आयत में हमारे लिए हुक्म है एक दूसरे पर मेहरबान, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर को माफ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। अब यहाँ कसूर दूसरे के माफ कर सकते हैं जब हमारे अंदर रहम दिली होगी। क्या होगी? रहम दिली होगी। जब हमारे अंदर ये खुदा की सिर्फ दो सिफात पाई जाएगी, रहीम, रहम और मेहरबान, रहम और मेहरबान, फिर हम दूसरों के कसूर माफ करेंगे। जिस तरह खुदा हमारे कसूरों को माफ करता है, खुदा अपने कहर को रोक लेता है ताकि हम लाज ना हो। बारहा हमारी गलतियों गुनाहों को अनदेखा कर देता है, अनसुना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी ये सिफत है कि वो रहीम है। मेरे अजीजों, जब ये खुदा की सिफात हमने नजर आएंगी तो जिस तरह यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है, तो यीशु मसीह ने ही कहा फिर लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर, फिर तुम लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी वासी क्या करेंगे? तमजीद करेंगे। तुम्हारे आसमानी वासी क्या करेंगे? तमजीद करेंगे। फिर लोग कहेंगे ये खुदा के बेटे हैं, ये खुदा के लोग हैं जो रहमदिली के साथ पेश आते हैं, जो मेहरबानी से पेश आते हैं। मेरे अजीजों, जिस तरह यीशु मसीह में खुदा की सिफात पाई जाती हैं और यीशु मसीह ने अमली तौर पर हमें नमूना दिया है, उसी तरह हमने भी अमली तौर पर इन सिफात को अपनी जिंदगी में पैदा करना है। फिर हम अदा होंगे, फिर हम खुदा के फरजाद होंगे, फिर हम खुदा के बेटे होंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।